हेलो गाइस, सो इट्स फ्राइडे। अभी बज रहे हैं 3:30 या 4 ऑलमोस्ट बज के होंगे एंड वी आर लीविंग फॉर Head north. हम कार से जा रहे हैं। सो या आई एम एक्साइटेड। आई होप दिस विल बी अ गुड एक्सपीरियंस एंड आई ऑफ कोर्स कीप यू अपडेटेड अबाउट एवरीथिंग। सो या ये हाय गाइस, सो वी आर इन गोवा। अभी हम जस्ट गोवा पहुंचे हैं, मतलब बॉर्डर क्रॉस कर लिया है हमने एंड अभी कुछ 30 मिनट्स में विल रीच टू आवर रिजॉर्ट एंड या आई एम सो एक्साइटेड। एंड अभी हम जाके फ्रेश होंगे एंड मैं कब से बैठी हूँ, मुझे थोड़ा ऑफ कोर्स मैं चेंज करूँगी, फ्रेश होंगी एंड देन आई विल सी यू। हाय गाइस, सो नाउ वी आर फाइनली रेडी। जब हम यहाँ पहुँचे तो उसके बाद हम सो गए, फिर फ्रेशन अप हुए एंड नाउ वी आर लीविंग फॉर कोलवा बीच। एंड साउथ गोवा में काफ़ी पॉपुलर है कोलवा। सो या लेट्स सी, आई एम वेयरिंग दिस, आई होप यू कैन सी एंड या आई फील प्रिटी एंड या दिस इज़ day 1 in Goa and I'm so excited for the days ahead and yeah, I'll meet you at Kolva beach. एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप आई लाइक टू शेयर कि आप अगर मार्च या फेब के मंथ में आ रहे हो तो आप शाम को 5 या 6 के बाद ही निकलो, बिकॉज उसके पहले तो इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि आपका मेकअप एंड जो भी आप पहनोगे सब चुभने लगेगा एंड फिर पूरा मूड स्पॉइल हो जाएगा। तो ये टाइम काफ़ी परफेक्ट है बिकॉज व्यू भी बहुत अच्छा मिलेगा एंड ठंड भी है, आई मीन बेटर है कंडीशन, वेदर कंडीशन। सो या दैट्स माई टिप। तो हम यहाँ खाने आए हैं रोज़ ऑमलेट विच इज़ वेरी पॉपुलर हियर। सो किसी फ्रेंड ने बताया था कि यहाँ का स्ट्रीट फूड है रोज़ ऑमलेट विच इज़ क्वाइट पॉपुलर, सो वी आर गोइंग टू ट्राई दैट एंड या आई एम एक्साइटेड। Yummy. Yummy. Hi guys, so we were here to eat rose omelette. रोज़ एज इन ROS ऑमलेट। इतना डिलिशियस ऑमलेट था। उन्होंने ऑमलेट के ऊपर गोवन करी डाल रखी थी जो कोकोनट से बनी हुई थी एंड इट वाज लाइक सीरियसली वेरी गुड और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा खाने का। एंड या अगर आप आ रहे हो तो ज़रूर ट्राई करना, आपको जहाँ कहीं भी ये मिले। इट इज़ ऑन कोलवा बीच रोड, सो आप ज़रूर आना एंड ज़रूर ट्राई करना। बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस होगा, आई एम गारंटिंग दैट। Got it. Guys, so it's our first beach. We are here at Kolva beach and it feels so good. I'll just show you.
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Hi guys, so it's day 2 in Goa. We just checked out from our resort and now we're leaving for North Goa, and before going there we are thinking of having some breakfast. So yeah, we'll see where we can have some and I'll update you. Hi guys, so we have finally checked in our room and we are here at North Goa, and I thought of giving you a room tour before we spoil the room. So yeah guys, come. This is the washroom and this is the kitchen area. We have everything which we need, and yeah, actually it's more than that, we don't need much. So we have one fridge, we have a dining area, we also have couch which I am so excited about. We have a TV, we also have a balcony which I'll show you later. Now let's move into our bedroom. So this is the bedroom. It's cute and comfy and cozy. It's pretty cute. Now I'll show you the balcony. This is the balcony which is cute and small and good. We also have a pool area. So yeah guys, that's it for the room tour. Now I'm so excited to explore places in North Goa, and now I'm gonna get ready and then I'll update you. चल चल
Hi guys, so it's the last day today in Goa. We'll check out at 11 and we'll check out from Goa as well. So I'll definitely miss Goa, but I am kind of happy to go back home and resume my work because there is a lot of stuff to do. And yeah, I hope you like this vlog. I am not a good vlogger and the major reason of not vlogging the whole trip is storage issue because I shoot on phone and I was getting a lot of storage problem. Also network in Hoa also network in Goa is really bad. So yeah, I really hope whatever you are watching you're enjoying, and yeah, please continue watching this vlog till the end. So here I am to tell you what went wrong with Purple Martini. So Purple Martini मुझे बहुत टाइम से जाना था and last time भी जब हम गोवा गए थे तो वो place miss हो गया. I wanted to see what's the hype is all about, कितना ज़्यादा popular है Purple Martini. तो हम वहाँ पे गए, we were 2 people and we went there around 7 or 8 PM. तो जब हम वहाँ गए तो first of all वहाँ पे parking area ही नहीं है उनका, कोई parking spot नहीं है. तो वो एक बहुत annoying thing हो गई because almost 1 to 2 kilometer away है parking area जो अंजुरा बीच का पार्किंग स्पॉट है. वहाँ पे पार्क करके हमको ऑल द वे पैदल जाना पड़ा था. दैट इज फाइन, वो उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ. बट वहाँ पे हम गए तो ऑलरेडी देयर वाज अ क्यू. तो वहाँ पे अराउंड 10 to 15 मिनट्स हमने वेट किया अपना नंबर आने के लिए एंड हमने पहले से रिजर्वेशन नहीं किए थे इसलिए हमको थोड़ा टाइम लगा. सो दैट इज ऑल्सो फाइन. यहाँ पे जब हम लोग जहाँ पे एंट्रेंस था वहाँ पे उनका मैनेजमेंट है जहाँ पे वो पूछते हैं कि कितने लोग हैं, टेबल फॉर 2 एंड एवरीथिंग. वहाँ पे बता के हम लोग अंदर घुसे. वहाँ पे अंदर गए एंड आई वॉज सो एक्साइटेड एंड सो पम्प्ड अप कि चलो ठीक है फाइनली हम लोग एंटर कर दिए इस प्लेस को. अभी हम अच्छा कुछ खाएंगे, विल एंजॉय द म्यूजिक एंड विल एंजॉय द व्यू. सो जब हम अंदर गए तो वी सॉ दैट कि पूरा बिजी है वो प्लेस. बिल्कुल कोई सीटिंग एरिया नहीं है हमारे लिए, अवेलेबल ही नहीं था कुछ भी. एंड इवन जो बार काउंटर्स के आजू बाजू जो जगह होती है वो भी प्री ऑक्यूपाइड थी, तो बिल्कुल प्लेस नहीं था. सो वी आस्क्ड, वहाँ पे एक बंदा आया वहाँ से हमको पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है, आपको सीट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं ना. तो हमने बोला उसको कि हमको सीट चाहिए, यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है एंड क्या हमको रिव्यू मिलेगा. तो उन्होंने बोला कि नहीं, बिकॉज वो सिर्फ अगर आपका बड़ा ग्रुप हो लाइक 5 to 6 पीपल का सीटिंग अरेंजमेंट उन्होंने उस एरिया में किया हुआ है, तो आपके लिए यू नीड अ बिग ग्रुप टू गेट द सी व्यू प्लेस. ठीक है, तो हमने कहा ठीक है कोई नहीं, हमको कोई भी अच्छा जहाँ पे हम बैठ सके वहाँ पे वो दे दो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बंदा हम जिसके साथ जो हमें एंटरटेन करता वो मुझे बहुत क्रीपी लग रहा था, बहुत ज़्यादा क्रीपी. एंड वहाँ पे अंदर घुसते भी मुझे क्राउड, आई डोंट नो व्हाई, इट वाज़न्ट माय वाइब. हम दोनों का वाइब नहीं था. बहुत ही वियर्ड सा यू नो, वो अनकंफर्टेबल फील कराने वाला वाइब नहीं होता, वैसा था वहाँ पे. तो उस बंदे ने बोला कि ठीक है अरेंजमेंट हो जाएगा आपका, बट आपको टोटल बिल करने पड़ेगा 5000 रुपीज़ का. वी वर शॉक्ड कि हम 2 ही लोग हैं, हम अगर कितना भी खाएं, कुछ भी हम लोग ड्रिंक करें या कुछ भी, फिर भी 5000 इज टू मच. एंड ऑलरेडी हम लोग इवनिंग के टाइम गए थे बिकॉज हमको रात को दूसरे प्लेसेस भी यू नो एक्सप्लोर करने थे. एंड 5000 इज टू मच यार, किसी किसी का पूरा बजट होता है गोवा का 5000. सो वी वर लाइक कि नो, मतलब ऐसा कोई क्राइटेरिया तो पहली बात होना नहीं चाहिए कि तुम्हें 5000 का बिल करना है. आई फेल्ट सो अनॉयड ये सुन के. तो मैंने बोला कि ऐसा नॉनसेंस है, ये क्या है, मतलब 5000 का बिल क्यों करेंगे, हमसे 2 ही लोग हैं, तो आप बस हमारे लिए सीट अरेंज कर दो. वो बार बार यही बातें बोल रहा था कि नहीं, और वो ना थोड़ी दबी हुई आवाज़ में बोल रहा था कि जैसे किसी को पता ना चले कि वो हमारी सेटिंग करा रहा है या ऐसा कुछ, थोड़ा फिशी दिख रहा था हमको. तो हमने बोला कि नहीं 5000 हम दोनों में नहीं होगा बिकॉज हम लोग इतना कुछ खाने नहीं वाले हैं, हम लोग सिर्फ चिल करने आए हैं. वी माइट गेट जस्ट 1 ड्रिंक एंड समथिंग टू ईट एंड यू नो, फिर भी 5000 इज टू मच. तो उसने बोला कि ठीक है अगर 5000 नहीं है तो आप मुझे कुछ पैसे दे दो. ही आस्क्ड फॉर 500 to 1000 रुपीज़, जिससे मैं आपको सीट अरेंज करके दे देता हूँ. एंड दैट टू जो बार साइड बाय द साइड ऑफ द बार वहाँ पे आपको सीट अरेंज मिल जाएगी. वर सो अनॉयड एट दिस पॉइंट कि क्यों हमसे मांग रहा है. ऐसे किसी जगह कोई पॉलिसी नहीं होती कि आप अगर आपको अमाउंट चार्ज ही करना है तो आपको स्टार्टिंग में ही चार्ज कर लेना चाहिए, कि आपको ऐसे कंडीशन डिक्लेयर कर देना चाहिए कि आपको यहाँ पे इतनी बुकिंग करनी पड़ेगी, देन ओनली यू कैन गो इनसाइड. जैसे नॉर्मली बार वगैरह में होता है स्टाइल एंट्री एंड एवरीथिंग, जैसे यूजुअली होता है. जो बंदा था ये हमको वहाँ अंदर जाके हमसे पैसे मांग रहा है और उसके रेट्स भी बढ़ते जा रहे थे धीरे धीरे कि नहीं अगर अभी आपने नहीं किया तो थोड़ी देर बाद इतना हो जाएगा, थोड़ी देर बाद उतना हो जाएगा, ऐसे करके. सो वी वर
वेरी पिस्ड एंड हम लोग इमीडिएटली वहाँ से बोले कि नहीं, अगर आपसे नहीं होता तो आप सीधा बोल दो। एंड वो बंदा फिर जब उसको पता चला कि हम लोग को गुस्सा आ रहा है तो उसने बोला कि नहीं 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 नहीं, आप बस कर दो, आप मेरा भी कुछ सोचो, ऐसी लैंग्वेज यूज़ करा था वो कि मेरा भी तो कुछ सोचो, अब मैं आपके लिए करा दूंगा एंड मैं आपको हो जाएगा सीट, बस मेरा कुछ सोचो, ऐसे मतलब वो हमसे कमीशन चार्ज करना चाह रहा था, विच इज़ आई डोंट थिंक राइट, बिकॉज वो रेस्टोरेंट है, वो सबके लिए अवेलेबल होना चाहिए इक्वली। एंड अगर आपके पास सीट नहीं है तो आप क्लियरली बोल दो कि ठीक है अभी हाउसफुल है, आप थोड़ी देर बाद आइए। वहाँ आप मेन एंट्री से आप अंदर भेज दे रहे हो एंड देन आप वहाँ जाके अपनी ये डील निकाल रहे हो, तो विच इज़ वेरी रॉन्ग एंड वेरी अनएथिकल ऑफ पर्पल मार्टिनी। फिर हम नीचे आ गए, हम लोग ऑब्वियसली हमारा दिमाग घूम चुका था फोटो, बिकॉज हम लोग काफ़ी प्लान बनाया था कि हाँ ठीक है पर्पल मार्टिनी तो जाना ही है इस वक्त। तो हम नीचे आ गए एंड हम वहाँ पे जो स्टाफ उनका खड़ा था, हमने उनको ये सब बताया कि ऐसे ऐसे हो रहा है। सो दे एक्टेड एज इफ दे डोंट नो एनीथिंग। सो इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन एंड केओस हो गया था कि मतलब पूरा मूड ऑफ हो चुका था एंड एकदम मन उठ गया था पर्पल मार्टिनी से। ऐसा रहता है ठीक है यार खत्म करो इसको, यहाँ से हम जाते हैं। तो हमने उनको बोला भी कि ठीक है छोड़ो, हमको नहीं बैठना अभी, यहाँ से हम जा रहे हैं। एंड मैं वीडियो ले रही थी तो उन्होंने देखा कि बस मैं रिकॉर्ड करी, तो उन्होंने बोला कि नहीं 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 सर प्लीज़, सर मैम प्लीज़ आप ये करो और आप बताओ कि अब कौन सा बंदा था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वहाँ पे कोई ब्लेम गेम खेलने नहीं गए थे एंड हम लोग वहाँ दूसरी प्लेस में है, तो ऑब्वियसली हम ऐसे किसी को ब्लेम नहीं करेंगे जाके, हमारा मूड स्पॉइल नहीं करेंगे, फालतू के पंगे हम नहीं लेने वाले थे। तो हम वहाँ से चले गए एंड बहुत ज़्यादा अनॉयड हो गए थे हम। फिर हम वहीं पे आगे जाके एक शैक पे बैठ गए एंड रेस्ट ऑफ द इवनिंग वाज प्रीटी गुड चिल्ड। तो हम वो फिर ये हो गया। तो यही मुझे आपको बताना था कि पर्पल मार्टिनी जो भी हाइप हो रही है ना इतना ज़्यादा कि लाइक ये फेमस, एक बार कोई भी अगर फेमस हो गया तो दे शुडंट यू नो फॉरगेट देयर एथिक्स और ये सब चीज़ें नहीं करनी। अगर आप ऐसे करोगे तो वापस वो बंदा क्यों आएगा आपके पास, तो वो मुझे बहुत खराब लगा। सो या गाइज विद दैट आई वुड लाइक टू एंड दिस व्लॉग। आई रियली होप दैट यू एंजॉयड वॉचिंग दिस व्लॉग एंड नेक्स्ट टाइम आई होप आई एम व्लॉगिंग बहुत अच्छे से compared to this one. So yeah, please don't forget to subscribe to my channel. Please hit the notification bell. It will keep you posted every time I post a new video on YouTube. And hit that like button, share this video, comment down below what are your thoughts on this vlog. With that I would like to say goodbye. Bye guys, see you next time.